after selecting who to marry, which is probably the most important decision in your life, this is going to be the second most important decision in your life. Okay? एंथ्रो इज हाईएस्ट स्कोरिंग, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं एंथ्रो लूँ या नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेटा के बेसिस पे करनी चाहिए। वो डेटा सारा मेरे पास है, वो सारा डेटा देखते हैं। एक पहले सबसे बड़ा झूठ जो आपसे शायद बोला गया होगा अभी तक, ये आगे बहुत बार बोला जाएगा, वो ये है कि सारे ऑप्शनल सेम होते हैं। ऑल ऑप्शनल्स आर नॉट द सेम। अगर कोई मुझे ये गारंटी दे देता है ना प्रिपरेशन के टाइम पे कि आपके ऑप्शनल में 300 प्लस आएंगे, बट ये कर लेना, मैं भाग के कर लेता। ऑप्शनल में 300 का नंबर का मतलब है आप आईएएस बन रहे। Today's session is basically about how you are supposed to select your optional subject. ठीक है? Now this is a very important session. Probably this is going to be the most important decision in your life after your decision to select your spouse. आप लोगों का जो एनालिसिस है, एंथ्रो इज हाईएस्ट स्कोरिंग, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं एंथ्रो लूँ या नहीं, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेटा के बेसिस पे करनी चाहिए। वो डेटा सारा मेरे पास है, वो सारा डेटा देखते हैं। ये लबासना की जैकेट है, ठीक है, और ताकि आप सब भी चैट में इस जैकेट के बारे में ना पूछें और एक्चुअली इस जैकेट को अपने ऊपर पहन सके, उसके लिए ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक दिस डिसीजन प्रॉपर्ली आफ्टर सिलेक्टिंग हु टू मैरी, which is probably the most important decision in your life. This is going to be the second most important decision in your life. Okay, so please take this decision wisely. Now if we have to take any decision wisely, अगर एक डिसीजन है जो जैसे ऑप्शनल का डिसीजन है और हमें ये डिसीजन अच्छे से लेना है, तो इस डिसीजन को अच्छे से लेने के लिए we should have some data and some credible information to be able to take this decision. तो आज का जो सेशन है, in this session I will tell you how I took this decision. I am not going to advise any optional to you. प्लीज मेरे से चैट में ये पूछने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, बट अगर आप मेरे से पूछोगे सर आई लाइक एंथ्रो एज एन ऑप्शन, शुड आई टेक एंथ्रो, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट मैटर। तो रादर देन आप मेरे से ये पूछोगे सर ये जो एंथ्रो है, मेरे को एंथ्रो पसंद है, क्या मैं एंथ्रो ऑप्शन ले लूँ, मुझे सोशियोलॉजी पसंद है, मैंने प्रणय सर की क्लास देखी है, मुझे सोशियोलॉजी बढ़िया लगता है, तो क्या मैं सोशियोलॉजी ऑप्शन ले लूँ। Rather than having this format, which I can't answer, मैं कैसे जवाब दूं इस बात का आपको जाने बिना, आपके बारे में जाने बिना, I'll tell you how I took the decision, how I decided किस statistics और data के basis पे मैंने ये decision लिया, और आपको ये decision कैसे लेना है। See, you are ultimately aspiring to be bureaucrats. You are ultimately wanting to enter the higher echelons of the Indian government. If that is something that you want, you have to take important decisions independently. Of course, you should be told what are the metrics of taking that decision. So the metrics will be very clear to you. The information will be very clear to you. I will give you all the information, all the data, all the stats, all the non-quantitative things as well to make that decision. But ultimately, you are the decision maker. We will also decide on what timeline we are going to make this decision. We are also going to decide how we are going to validate our decisions, whether we have taken the right decision or not, and why it is important to take this decision now. ठीक है, समझ आ गया? I can't tell you the name of a single optional कि यार ये optional है, ये ले लो और आप select हो जाओगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप सब वही option ले लेते, then everybody would give the paper with the same option. If there is so much variety, that variety is explained by the fact that you can get selected after taking any optional. You don't have to take the best optional in the world. There is no best optional. There is one optional that is going to be best for you. Our job, your job and my job together, is to ensure that we find that best optional. That best optional which is best for you, which will ensure that you get the highest marks, is the name of the game here. Okay. Now, this data that I'm talking about, I have two data sets. Firstly, there are 750 students of Sarthi IAS, and I am sure that in 2027, it is you people who are going to increase this number. But in 2025's exam, there are 750 students of Sarthi IAS who are giving the interview. These are
students of our courses, not students who have just come for interview guidance. These are students of our courses, foundation course, MMP plus, prelims course, etc etc, जो लोग मेंस क्लियर करके इंटरव्यू दे रहे हैं। इन सबसे हमने फॉर्म्स भरवाए हैं, गूगल फॉर्म भरा है इन लोगों ने, और इन्होंने अपना ऑप्शनल उसमें बताया है। सो वन इज दिस डेटा सेट। इसके अलावा देर आर अबाउट सम 350 more students that are only at Sarthi IAS for interview guidance. ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स नहीं है, ये सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए हमारे पास आए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1100 स्टूडेंट्स का हमारे पास जो इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं, 750 सारथी IAS के स्टूडेंट, 350 बाहर के स्टूडेंट्स, ये लोग सब इंटरव्यू दे रहे हैं, सबका मीन्स क्लियर हुआ है, मतलब इनके मीन्स में अच्छे नंबर आए हैं। इनका ऑप्शनल का डेटा है हमारे पास। वी हैव द ऑप्शनल डेटा ऑफ दीज 1000 पीपल। Okay, the other data set is last year. As you know, last year there were 175 selections from Sarthi IAS. Out of these 175, there were many who gave us their mark sheets. So there is data of these 175 selected candidates of UPSC CSE 2024, and this data is from UPSC CSE 2025. So 2025 result has not come out yet. So 2025 interview appearing data I have, all of Sarthi IAS students and these 350 other students, and these 175 selected toppers, students of Sarthi IAS from 2024. So broadly you can say this data has come from Sarthi IAS. These are people who we have taught, and since you are all going to be on the same journey, at least in terms of GS, this data is most relevant for you. You are going to study the same courses that they have studied on the same timeline with the same teachers that they have studied. So the idea is that once we have this data, using this data, we will take a wise and correct decision for ourselves. There is no optional which is the best optional. Our job here is to select the best optional for you. How are we going to do that? कैसे करेंगे? I will tell you कि मैंने decision कैसे लिया. I'll tell you how I made the decision, and you then learn that process and take the decision by yourself. In the next 10 days, we will try that all of us make this decision for ourselves. Is this clear? Now is the process clear? What we're going to do here? Process is clear? Broadly all right? This is what we're going to do. Okay, sounds logical? We're all on board. This is what we're going to do. Let's start with this. The problem in selecting a bad optional. Let's say we select an optional that is not good for us. What happens to us then? पहले ये समझते हैं कि हमारे साथ क्या होगा अगर हमने खराब ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो। Let's say मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया जो मेरे को पसंद नहीं था, जैसे मुझे मेडिकल साइंस, मेरे लिए पर्सनली, फॉर मी मेडिकल साइंस वुड हैव बीन अ बैड ऑप्शन. लेट्स से आई हैड सिलेक्टेड मेडिकल साइंस. फरवरी 2026 में फॉर्म आएगा इस साल के पेपर का. लेट्स से मैं 2026 का अटेम्प्ट दे रहा था, आप लोग 27 का दे रहे हो, बट 26 के एग्जाम्पल से समझते हैं. Let's say I selected medical science optional. Medical science was a bad optional for me. For me, it's not a bad optional overall. मेरे लिए खराब था क्योंकि मुझे मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं था. मैंने मेडिकल साइंस सिलेक्ट कर लिया ऐसे ही बिना सोचे, जो डिसीजन सोचा कर लिया क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, मैंने कर लिया. मई 2026 में मैं प्रीलिम्स दूंगा. प्रीलिम्स दिया, लेट्स से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया. अगस्त में मैं मेंस दूंगा. दिस इज द टाइम आई एम गोइंग टू गिव मेंस नाउ ऑफ 2026. मेंस में मान लो मैं फेल हो गया, अनफॉर्चुनेटली मैं मेंस में फेल हो गया. अब ये तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ. कब पता चलेगा? नवंबर में रिजल्ट आता है मेंस का, तो नवंबर में मैं मेंस में तो फेल हो गया, ये बात तो मुझे पता है, बट मार्कशीट तो नहीं मिलती. मार्कशीट कब मिलती है? जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है. अब मैं 2026 के अटेम्प्ट में फेल हुआ हूं, तो मैं कहूंगा यार मैं 2027 का अटेम्प्ट दूंगा. जब मैं 2027 का अटेम्प्ट देने जाऊंगा तो फिर से फरवरी में मुझे फॉर्म भरना है, और इस फॉर्म में मुझे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बताना है. I know that I have failed in mains, but I don't know why I have failed in mains. So I don't know whether I have performed well in the optional or not. And since I don't have this information कि यार ऑप्शनल मैंने अच्छे से करा है या नहीं, क्योंकि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, अब मेरे पास ये कंपल्शन हो जाएगी कि फॉर्म में फिर से मेडिकल साइंस भरूं.
फिर रिजल्ट आएगा यूपीएससी का मार्च में, 2026 के एग्जाम का मार्च 27 में रिजल्ट आएगा, अप्रैल में मार्कशीट आएगी। अब मैंने मार्कशीट देखी और पता चला कि मेरे तो मेडिकल साइंस में बहुत ही लो मार्क्स थे। मुझे पता चल रहा है अप्रैल में नेक्स्ट ईयर, बट मैं ऑलरेडी एक फॉर्म तो भर चुका हूं, तो अब 2027 का अटेम्प्ट भी मैं दूंगा मेडिकल साइंस के साथ ही, इवन दो द प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाइड हियर, बट आई डोंट नो क्या हुआ। हो सकता है मेडिकल साइंस मैंने बहुत अच्छा किया हो सकता है मैंने बहुत खराब किया हो। देयर इज नो वे टू नो टिल द मार्कशीट इज आउट, एंड मार्कशीट कम्स आउट आफ्टर आई हैव फिल्ड द फॉर्म फॉर नेक्स्ट ईयर। तो मैं नेक्स्ट ईयर सेम ऑप्शन के साथ पेपर दे रहा हूं। लेट्स से मैं मेडिकल साइंस में बहुत खराब था, पता कब चल रहा है? अप्रैल में। अगले साल का फॉर्म भर चुका हूं, अब एक और अटेम्प्ट वेस्ट होगा मेडिकल साइंस के साथ। सो वन बैड डिसीजन कैन वेस्ट 2 अटेम्प्ट्स, नॉट 1। एक अटेम्प्ट तो खराब हुआ ही 2026 का इसकी वजह से, और मैंने प्री क्लियर किया तो मैं ऑब्वियसली एक सीरियस एस्पिरेंट तो हुई। मेरा एक अटेम्प्ट यहां वेस्ट हुआ, एक अटेम्प्ट एक और बार वेस्ट होता अभी 2027 का। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये लॉजिक समझ आया? ये बात समझ आई? समझ आई ये बात कि यार पता चलेगा कि मैं 2 अटेम्प्ट दे रहा हूं सेम खराब ऑप्शनल के साथ। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो मुझे डिसीजन तो प्रॉपर लेना है, ठीक है? आई हैव टू टेक द प्रॉपर डिसीजन राइट नाउ, करेक्ट? ठीक है। अब इंपॉर्टेंस समझते हैं। मेंस का अगर हम पेपर देखें, मेंस का हम फॉर्मेट देखें, तो 1750 मार्क्स का होता है मेंस का पेपर। इसमें से 1000 जीएस है, 250 हमारा एसए है, और 500 हमारा ऑप्शनल है। तो हमें लगता है कि यार जीएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स व्हाट यू वुड फील आफ्टर लुकिंग एट दिस। बट इफ यू लुक एट नाउ मार्कशीट्स, you would see a completely different stories, right? यहां पर आप देखोगे कि मार्कशीट यहां दिख रहा है कि यार जीएस में 1000 नंबर आते हैं, एसए में 250 और ऑप्शन में 500। बट जो मार्क्स स्कोर किए जाते हैं, if I let's say talk of somebody who is going to become an IAS from general category, तो इनके कितने नंबर आने वाले हैं? इनके नंबर आने वाले हैं जीएस में 1000 में से अगर आप 400 प्लस ले आते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो। मतलब जीएस में आपको चाहिए 40% मार्क्स टू गेट इनटू द आईएएस फ्रॉम जनरल कैटेगरी। एसए में आप 250 में से अगर आप 120 के आसपास ले आते हो, यानी कि क्लोज टू 50%, तो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं ये। बट ऑप्शनल में अगर आपको आईएएस बनना है तो इन 500 में से आपको लाने पड़ेंगे 290 टू 300, which is 60%. तो हाईएस्ट स्कोरिंग आपकी ऑप्शनल में होनी है। यू हैव टू गेट द हाईएस्ट स्कोर फ्रॉम द ऑप्शनल, ठीक है? तो अगर आप ऐसे देखोगे, इस चीज को देखोगे, तो ऑप्शनल की बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत ज्यादा वेटेज है। जो मेंस के मार्क्स बनते हैं, इफ somebody has to get into the IAS, around 820 830 marks are required. इस 820 में से around 300 are going to come from the optional. तो ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में से। ऑप्शनल इंपॉर्टेंट तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कुछ फैक्टर्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर आई टेल यू दीज फैक्टर्स। आप मुझे बताओ, बिकॉज इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो सोचते हो वो थिंकिंग हम यहां देखें और समझें कि यार इसमें ये फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमें फैक्टर्स भी देखने हैं। तो अब आप मुझे बताओ, when you have to select an optional, what factors do you keep in mind? आपके हिसाब से कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, फिर हम उस पर बात करते हैं। What are the factors that matter? कौन कौन से फैक्टर मैटर करते हैं आपके हिसाब से? मैं जो जो लिखता जाऊंगा उसको रिपीट मत करना। किसी ने कहा स्कोरिंग, एक मैंने देखा किसी ने कहा रिसोर्सेज होने चाहिए, एक किसी ने कहा यार बैकग्राउंड होना चाहिए। जो अगर बोर्ड पे लिख दिया है उसको रिपीट नहीं करेंगे।
ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तो बैकग्राउंड हो गया। एक ने कहा इंटरेस्ट, कोई फन भी कह रहा है, ठीक है, फन एंड इंटरेस्ट इज द सेम थिंग, तो चलो मैं इंटरेस्ट लिख देता हूं। और कुछ? गाइडेंस मतलब रिसोर्सेज तो हो गया। और कुछ? यही होना चाहिए क्या बस? शॉर्ट सिलेबस, शॉर्ट सिलेबस, करंट अफेयर से लिंक्ड ना हो तो बेटर है ना? और कुछ? शॉर्ट सिलेबस होगा तो लिमिटेड टाइम में कवर हो जाएगा, जीएस के साथ ओवरलैप हो, वेरी गुड, जीएस के साथ ओवरलैप हो। और कुछ? जीएस भी कवर हो जाए। अब देखो बोर्ड पे जो लिखा है, इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, इजी टू स्टडी कर लेते हैं, इजी टू स्टडी। और कुछ? यार आप सिलेक्शन रेशियो और स्कोरिंग में क्या फर्क है? इजी टू स्टडी, नॉट बोरिंग तो इंटरेस्ट में आ गया ना। ऐसा कुछ लिखो अब जो यहां पर ना लिखा हो। बैकग्राउंड हो गया ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, बैकग्राउंड मतलब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बैकग्राउंड हो गया। और कुछ? शॉर्ट सिलेबस होगा तो कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, लेस टाइम टू कवर, ये है ना शॉर्ट सिलेबस, ये लेस टाइम टू कवर, ये इजी टू स्टडी मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। और कुछ? दोबारा पढ़ो यार बोर्ड पे क्या लिखा है, रिपीट मत करो। फैकल्टी अच्छी हो मतलब रिसोर्सेज है, पीवाईक्यू गेट्स रिपीटेड, ओके। लेस कंपटीशन तो ओवरऑल है। अफोर्डेबल का क्या मतलब है यार? कोई कह रहा है सिलेक्शन रेशियो, अरे सिलेक्शन रेशियो तो इसी से फाइनल हो जाएगा ना। पीवाईक्यू रिपीट होता हो मतलब, चलो पीवाईक्यू रिपीट होता हो मतलब ठीक है कि करंट अफेयर्स लिंक ना हो, मेनली स्टैटिक इंफॉर्मेशन हो इसमें। स्टैटिक होगा तो पीवाईक्यू रिपीट हो ही जाएंगे, ठीक है। अब एक बार 1 मिनट लगा के बोर्ड पे जितने फैक्टर्स हैं उनको पढ़ो। स्कोरिंग मतलब इससे सिलेक्शन ज्यादा होता हो, इसमें नंबर ज्यादा आते हो। सिलेक्शन में ऑप्शन के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, तो ऑप्शनल इज नॉट the thing that has a high selection ratio. People have selection ratios. Optional can only have scores. है ना? सिलेक्शन रेशियो लोगों का होता है, सब्जेक्ट्स का स्कोर होता है, ठीक है। रिसोर्सेस मतलब टीचर अवेलेबल हो, फैकल्टी अवेलेबल हो, गाइडेंस अवेलेबल हो, बुक्स अवेलेबल हो, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अवेलेबल हो। बैकग्राउंड मतलब आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो, आपका अगर ग्रेजुएशन है आपको पता हो यार, फेमिलियरिटी हो आपकी एटलीस्ट। इंटरेस्ट हो मतलब आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, मजा आता हो। सिलेबस छोटा हो मतलब जल्दी टाइम में कवर किया जा सकता हो। करंट अफेयर से लिंक्ड ना हो तो स्टैटिक हो, रेपिटेशन होती हो पीवाईक्यूज की। इससे आपकी जीएस की भी ओवरलैपिंग हो जाए और पढ़ने में आसान भी हो, समझने में आसान हो, याद करने में आसान हो, वैसे इजी हो। यही चाहिए ना ब्रॉडली। इतने में तो हो जाएगा या और भी कोई डिमांड है आपकी? और भी कोई डिमांड है इसके ज्यादा या इतने में हो जाएगा? इतने में हो जाएगा? ये और भी कोई डिमांड है तो बता दो यार। नंबर ऑफ टॉपर्स में स्कोरिंग है ना यार। रिलीफ सब्जेक्ट मतलब इंटरेस्ट लिखा है ना यार, एक बार पढ़ो बोर्ड पे क्या लिखा है। इतने में हो जाएगा या और भी कुछ चाहिए? पढ़ो तो सही बोर्ड पे क्या लिखा है। चलो अब थोड़ा सा आपका दिल तोड़ देते हैं, ऐसा ऑप्शनल मार्केट में है नहीं। दिस इज लाइक सेइंग दैट आई वांट अ स्पाउस हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुकिंग, टेक्स केयर ऑफ मी, is financially supporting me, very good with my family, has no bad qualities, very supportive, सारी क्वालिटीज बढ़िया हैं, सब अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें वो खराब हो, ठीक है। ये नहीं हो सकता, दिस कांट हैपन।
और अगर ऐसा कोई है भी तो वो आपको क्यों पिक करेगा? ठीक है, सब में कोई ना कोई इशू होता है, तो आपके ऑप्शन में भी होगा। ठीक है, दिस इज लाइक सेइंग कि मुझे आई वॉन्ट दैट all the best qualities that are possible in a human that should be in the spouse that I pick. हर तरह से बेस्ट हो, है ना? Then why would that spouse pick me? सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब हमें ये बात समझने की जरूरत है कि इनमें से कुछ फैक्टर्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। नॉट ऑल दीज फैक्टर्स मैटर इक्वली। ठीक है, एक पहले सबसे बड़ा झूठ जो आपसे शायद बोला गया होगा अभी तक, ये आगे बहुत बार बोला जाएगा, वो ये है कि सारे ऑप्शनल सेम होते हैं। दिस इज अ बिग लाई। ऑल ऑप्शनल्स आर नॉट द सेम। ऑल ऑप्शनल्स आर नॉट द सेम। Some optionals generally get higher scores and some optionals generally get worse scores. ठीक है, तो अब मुझे ये बात समझनी है कि इनमें से वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेलेवेंट हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो रेलेवेंट नहीं हैं। सो फर्स्टली, ये फैक्टर सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बाकी हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लो, एक ऑप्शनल है जिसमें आपका बैकग्राउंड नहीं है, जिसका जीएस से कोई ओवरलैप नहीं है, जिसका सिलेबस भी छोटा नहीं है और जो पढ़ने में भी मुश्किल है, बट आपकी गारंटी है कि वो, और आपको इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, और रिसोर्सेज ढूंढने में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस ऑप्शन में आपके 300 नंबर आ जाएंगे, तो आप लोग ले लोगे? रिसोर्सेज भी मुश्किल हैं, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है, इंटरेस्ट भी कम आएगा, सिलेबस भी बड़ा है, करंट अफेयर्स भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, जीएस के साथ कोई ओवरलैप नहीं है, स्टडी करने में मुश्किल है, मेहनत लगेगी, बट नंबर 300 प्लस आएंगे, इसकी गारंटी है। अगर आपका इस चीज का क्वेश्चन का आंसर है नो, इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन विद द वर्ड नो, यू नीड टू री इवेलुएट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर कोई मुझे ये गारंटी दे देता है ना प्रिपरेशन के टाइम पे कि आपके ऑप्शन में 300 प्लस आएंगे, बट ये कर लेना, मैं भाग के कर लेता, मैं पहले वो चीज करता, फिर जो मुझे ये गारंटी दे रहा होता मैं उसके पैर छूता, उनके सामने हाथ जोड़ता कि सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहां तक पहुंचाया। ऑप्शनल में नंबर का मतलब है आप आईएएस बन रहे हो, मोस्ट लाइकली आप बन रहे हो, अनलेस यू डोंट मेस अप एनीवेयर एल्स। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो है तो मतलब आप कुछ गलत सोच रहे हो, आपको शायद इस एग्जाम के कंपैरेटिव नेचर का आइडिया नहीं है। हर 5 नंबर पे 100 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है इस एग्जाम में। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस ऑप्शनल में आप 300 नंबर ले आओगे और बाकी सब कुछ नहीं है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शनल है नहीं, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये फैक्टर सबसे मेजर है। देखो यार, मेरा सोचने का एक तरीका है, एक मेथडोलॉजी है, हो सकता है हमारी मैच ना करे आपस में। मेरी सोचने की एक ही मेथडोलॉजी है, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता अदर देन द फैक्ट कि आप सिलेक्ट हो जाओ। मेरा एक ही गोल है लाइफ में कि आप लोग सिलेक्ट हो जाओ, दैट्स इट। आई एम अ कंप्लीट मार्क्सिस्ट, वेयर मार्क्स इज स्पेल्ड एज MARKS। मुझे सिर्फ मार्क्स लाने हैं आप लोगों के, बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आप मार्क्स लेके आओ, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू मी। मेहनत करनी पड़े, ज्यादा पढ़ना पड़े, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़े, रिसोर्सेज मुश्किल हो, हाँ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एंड द ओनली फैक्टर दैट मैटर्स हियर इज स्कोरिंग होना चाहिए, ताकि इसमें मैं एक अच्छा स्कोर ला सकूं। लिंक्ड फैक्टर टू दिस इज कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर आपको बहुत बोरिंग लगेगा पढ़ने में, तो अगर ऑप्शनल स्कोरिंग भी होगा तो आप लोग उसमें मार्क्स नहीं ले पाओगे। फॉर यू टू एक्चुअली स्कोर वेल इन समथिंग, ऑप्शनल में काफी इन डेप्थ रीडिंग करनी पड़ती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फील इंटरेस्टेड, इट शुड नॉट बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन द वर्ल्ड टू यू। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये तो मुझे दुनिया की सबसे बढ़िया चीज लगती है, देखो क्या बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसी को पढ़ के मजा आता है, मन करे तो पूरे दिन इसी को पढ़ता रहूं। ऐसा नहीं है, इतना होना चाहिए कि हाँ आपको देख के लगे कि यार ठीक है, खराब नहीं लगता। इट शुड नॉट बी रिपल्सिव,
जैसे मुझे मैथ्स को देख के लगता है, मैथ्स को देख के, मेरी मैथ्स खराब नहीं है, बट मैथ्स को देख के मुझे एक रिपल्शन फील होती है कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, बाकी कुछ भी करवा लो। वो रिपल्शन अगर नहीं है तो ठीक है। तो स्कोरिंग के सामने 2 स्टार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट के सामने 1 स्टार सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा जो भी यहां लिखा है वो मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैं एक एक करके समझाता हूं। अगर एक सब्जेक्ट स्कोरिंग है तो उसकी रिसोर्सेज होंगी ही होंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो। इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है, कोई ना कोई किसी ना किसी ऑप्शनल को अच्छे से पढ़ा रहा होगा, ठीक है। वो मेरा काम है आपके लिए रिसोर्सेज ढूंढना, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको हटा देते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं। मेरे को एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन का डेटा पता है क्योंकि मेरा खुद का ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। I know at least 5 engineers who have secured more than 320 marks in anthropology. 5 engineers को मैं पर्सनली जानता हूं। एक मेरे ही बैचमेट का नाम ले लेता हूं, उनका नाम है अनिरुद्ध यादव, एक का नाम है द्विज गोयल। अनिरुद्ध यादव वाज रैंक 8, द्विज गोयल वाज रैंक 71 आई थिंक। दोनों ही मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही लोगों के 315 या 320 नंबर आए थे एंथ्रोपोलॉजी में, मेरे साल में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे। दोनों ही इंजीनियर्स हैं। एंथ्रोपोलॉजी का इंजीनियरिंग से कुछ लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। डॉक्टरी से है, बायोलॉजी से फिर भी है, काफी है। इन दोनों लोगों ने, दोनों इंजीनियर्स हैं। अनिरुद्ध इज फ्रॉम IIT दिल्ली, द्विज का मुझे कॉलेज याद नहीं आ रहा है, बट इंजीनियर हैं। दोनों इंजीनियर्स ने एंथ्रोपोलॉजी में अराउंड 320 मार्क्स लिए हैं। 320, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट और इन एनी सब्जेक्ट दैट ईयर। इन 2022 के यूपीएससी की बात कर रहा हूं जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। उनका ग्रेजुएशन और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपस में दूर दूर तक कोई मेल नहीं खाता है, तब भी इवन देन विदाउट एनी लिंक ऑफ देयर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट दे गॉट सच हाई मार्क्स। सो देयर आर इनफ एविडेंसेस टू बिलाई दिस थ्योरी दैट इट शुड बी क्लोज टू योर बैकग्राउंड। शॉर्ट सिलेबस, अगर एक ऑप्शनल होगा जिसको आप कहोगे कि यार इसका सिलेबस लॉन्ग है, द बिग सिलेबस ऑप्शनल, तो शायद आपको उसको कंप्लीट करने में 6 मंथ्स लगे। और जो ऑप्शनल आपको अपेरेंटली लगता है कि इसका शॉर्ट सिलेबस है, उसको कंप्लीट करने में शायद आपको 3 मंथ्स लगे। जब मैंने ऑप्शनल सिलेक्ट किया था एंथ्रोपोलॉजी, तो मुझे लगा था एंथ्रोपोलॉजी एक शॉर्ट ऑप्शनल है, मैं 3 महीने में कर लूंगा। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। पहले अटेम्प्ट में, इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूं, मार्कशीट भी दिखा सकता हूं। In my first attempt, I had studied anthro for 4 months, 4 to 5 months. The score I got was 236. In my second attempt, इन 4 months के ऊपर जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ, मैंने 4 months और ऐड किए थे और मैंने पढ़ा था एंथ्रोपोलॉजी फॉर अबाउट 8 months और मेरा स्कोर आया था 270। अगर मैंने अनिरुद्ध से, जितना मुझे याद है, जो मैंने बात करी है अनिरुद्ध यादव से, हरियाणा काडर में ही IAS हैं, उन्होंने ऑप्शनल पढ़ा है अराउंड 10 मंथ्स और उनका स्कोर आया है 315। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 10 महीने पढ़ लेता तो मेरा 315 आता, बट शायद 300 तो आ ही जाता। तो ये शॉर्ट सिलेबस ना मिथ है, क्योंकि जिस चीज का भी शॉर्ट सिलेबस है, आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो कि यार सिलेबस पूरा हो गया तो बात खत्म। आप दे रहे हो एग्जाम दूसरों से कंपीट करने के लिए। यू आर गोइंग टू कंपीट विद समबडी एल्स। इफ दे हैव स्टडीड द सेम सब्जेक्ट मोर देन यू, even if the syllabus is short, they will get more marks. मान लो मैं आपको कहूं यार कि आज फंडामेंटल राइट्स प्रिपेयर करना है और हम मेंस देंगे, मैं भी दूंगा और आप भी दोगे। बहुत शॉर्ट सिलेबस है, एक चैप्टर ही तो है, बट हो सकता है मैं 5 किताबें पढ़ लूं उस पर, आप एक ही पढ़ के आओ। जब मेंस दो तो मुझे 4 सुप्रीम कोर्ट केस हर फंडामेंटल राइट में ज्यादा आते हैं, मेरे आप ज्यादा नंबर आ जाएंगे। टेक्निकली सिलेबस वॉज शॉर्ट, क्योंकि दूसरों से कंपटीशन है, ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स जो हमें वैसे पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी के लिए, जो जिसका मेजॉरिटी पोर्शन मैं ही पढ़ाऊंगा मोस्ट लाइकली आप लोगों को, जो करंट अफेयर्स हमें वैसे पढ़ना पड़ेगा फॉर आवर जीएस, वो किसी भी ऑप्शन के करंट अफेयर्स से कम है, सॉरी ज्यादा है, फॉरगिव मी। जीएस में आपको वैसे भी ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। द करंट अफेयर्स दैट यू हैव टू रीड फॉर जीएस is already much more than you would ever need for any optional. Even the most, let's say,
डायनेमिक ऑप्शनल जैसे कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उससे ज्यादा आईआर और उससे ज्यादा पॉलिटी के करंट अफेयर्स आपको जीएस के लिए ही पढ़ने पड़ जाएंगे। तो जो हमें लगता भी है कि करंट अफेयर्स बेस्ड ऑप्शनल है वो एक्चुअली है नहीं। तो ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन इन करंट अफेयर्स बेस्ड ऑप्शनल्स, मैंने पीएसआईआर को भी एनालाइज किया है, इवन इन करंट अफेयर्स बेस्ड ऑप्शनल्स यू विल सी that about 60 to 70% of the paper is getting repeated from previous year questions. Just the answer changes based on current affairs development. So even this factor is not relevant. आगे आते हैं. General studies overlap. Anthropology is one of the optionals that has produced one of the most number of toppers, at least in the last decade. 2018, 19, 20, 21 में तो ऐसा हाल था कि आईएएस को कई लोग इंडियन एंथ्रोपोलॉजी सर्विसेज कहते थे रादर देन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इतने ज्यादा लोग एंथ्रो लेके आईएएस बनते थे उस टाइम पे। एंथ्रो का जीएस से कोई खास ओवरलैप नहीं है, कहीं भी नहीं है। मे बी अ लिटिल बिट इन सोसाइटी, बट इतना कम है कि उससे कोई ज्यादा अप्रिशिएबल चीज नहीं है, राइट? नहीं है एंथ्रो का ओवरलैप। मेरे बैच में जो रैंक 4 थी वो जूलॉजी ऑप्शनल के साथ उन्होंने अपना पेपर क्लियर किया था। जूलॉजी का तो बिल्कुल ही कोई लिंक नहीं है, बट उनकी तो रैंक 4 आ गई। इस बार हर्षिता जो सारथी आईएएस की स्टूडेंट है, रैंक 2 है, उनका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल है। कॉमर्स का तो कोई लिंक नहीं है जीएस से, उनकी भी रैंक 2 आई हुई है। तो ये फैक्टर भी ओवर रेटेड है, ठीक है। इजी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड, लास्ट फैक्टर बचा इजी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड। इजी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड जो है, इसमें क्या है यार कि you might think something is easy to understand, you might think something is difficult to study, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं मान लेता हूं ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज अगेन समथिंग दैट आई वुड लिंक टू इंटरेस्ट, राइट? हर ऑप्शनल में यूपीएससी ने यही कहा है कि या तो कोई प्रोफेशनल ऑप्शनल हो, जैसे कि मेडिकल साइंस या लॉ, तो इसमें वो कहते हैं कि जो एक नॉर्मल प्रोफेशनल को आता है वो आपको आना चाहिए। जो ह्यूमैनिटीज बेस्ड ऑप्शनल है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसमें वो कहते हैं कि आपको एक बीए ऑनर्स स्टूडेंट जितना आना चाहिए। ऑनर्स लेवल जो एक 4 ईयर की डिग्री होती है उस लेवल का आपको आता हो, तो उस लेवल का हम पेपर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। तो ये फैक्टर भी अब्सॉर्ब हो जाता है विद इन दीज 2 फैक्टर्स। सो अब हमारा डिसीजन ये है कि ये स्कोरिंग और इंटरेस्ट, सबसे पहले स्कोरिंग और सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट, इन 2 फैक्टर्स के बेसिस पे हम अपने डिसीजंस लेंगे। स्कोरिंग देखने के लिए हमें डेटा चाहिए, डेटा मैं आपको दूंगा। इंटरेस्ट तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता आपके लिए, वो तो आप ही डिसाइड करोगे। इंटरेस्ट डिसाइड करने का मैं आपको तरीका बता दूंगा। फेयर? ये प्रोसेस फेयर है? इंटरेस्ट कैसे डिसाइड करना है वो आप करो, स्कोरिंग के लिए मैं डेटा दे देता हूं। स्कोरिंग के लिए मैं डेटा दे देता हूं। मैं अगेन कह रहा हूं यार, आप लोग चैट में अगर ऐसे डाउट लिखोगे कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मुझे ये ऑप्शन लेना चाहिए क्या, मैं नहीं दे पाऊंगा आंसर। समझो इस बात को, यू विल हैव टू टेक द डिसीजन योरसेल्फ। कोई और आपको आके हेल्प नहीं कर सकता है, मैं आपको बस ये बता सकता हूं, इतनी हेल्प भी नहीं करते हैं लोग, मैं आपको ये बता देता हूं, पूरा डेटा दे देता हूं कि ऐसे डिसीजन लेना है, ठीक है? चलो, ठीक है। तो अब आते हैं, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, स्कोरिंग और इंटरेस्ट, हम यही 2 देखेंगे, ठीक है। अब स्कोरिंग कैसे देखा जाता है? स्कोरिंग देखने के लिए सिंपल है, हमारे पास 2 डेटा सेट्स हैं। एक डेटा सेट जैसे मैंने आपको बताया, जो लास्ट ईयर 175 सिलेक्शंस हुए थे सारथी आईएएस के, उसमें से जो डेटा निकला हमारे स्टूडेंट्स का, ये डेटा, और इस बार जो 750 हमारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं उनका डेटा, प्लस जो अराउंड 300 और स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस में सारथी आईएएस के पास आए हैं, इन लोगों का कंबाइंड डेटा। यहां से हमें पता चलेगा इस डेटा से कि जो लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उसमें से कौन से ऑप्शनल से कितने लोग हैं। तो एक ही आइडिया हो गया, इससे हम एक्सट्रैपोलेट कर सकते हैं कि यार ज्यादा ऑप्शनल ये है जो ज्यादा इस बार उसने ज्यादा स्कोर किया है। वी कैन एक्सट्रैपोलेट, बट वी डोंट हैव द एक्चुअल स्कोर्स बिकॉज द मार्कशीट इज नॉट आउट येट। इनकी मार्कशीट तो अभी आई नहीं, इनका तो रिजल्ट भी नहीं आया अभी,
बट हाँ, हम एक ब्रॉड आइडिया ले सकते हैं कि यार 2025 में इन ऑप्शनल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। यहां पर तो हमारे पास पूरा डेटा है इंक्लूडिंग मार्कशीट्स, यहां पर तो हमारे पास मार्कशीट्स का भी डेटा है। तो ये 2024 का डेटा हो गया। सो आई हैव डेटा फ्रॉम 2024 एंड डेटा फ्रॉम 2025। ठीक है, दोनों डेटा है, इन दोनों डेटा के बेसिस पे हम डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, अब हाउ टू टेक दिस डिसीजन। अब इस वीडियो का, इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज अपने बाकी डाउट साइड करके, ठीक है, प्रोसीजरल बाकी जो भी डाउट्स हैं उनको साइड करके आप प्लीज जितनी ध्यान से सुन सकते हो उतनी ध्यान से सुनो। आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरी अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझा रहा हूं, पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखो, यूपीएससी ने अराउंड 23 ऑप्शनल्स की लिस्ट दी है। 23 ऑप्शंस की लिस्ट दी है, मुझे अब डिसीजन लेना है, मुझे क्या लेना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप है इन 23 के 23 को देखो। ये अभी नहीं करना है, ये घर पे कर सकते हो। ये जो लिस्ट है, ये एक्चुअली ये जो पीपीटी है, ये पूरी पीपीटी मैं आपके लिए अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो उसका भी कोई डाउट नहीं रहेगा। ये जो लिस्ट है इसको देखो, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, यहां से पढ़ते हुए सोशियोलॉजी तक ये लिस्ट है। ठीक है, आगे शायद जूलॉजी वगैरह भी होगा, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये एक लिस्ट है यहां लिखी हुई है। माई फर्स्ट जॉब इज टू एलिमिनेट दी इम्पॉसिबल्स। इम्पॉसिबल्स कौन से हैं? इम्पॉसिबल्स आर दोज ऑप्शनल्स जो मैं ले ही नहीं सकता। दीज ऑप्शनल्स आई कांट टेक। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने लिए एज अ डॉक्टर जब मैं डिसीजन ले रहा था, मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एक डॉक्टर हूं। मैंने 11th-12th में पीसीबी पढ़ी है और मैंने कॉलेज में मेडिकल साइंस पढ़ी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जैसे मेरे लिए कौन से ऑप्शनल्स इम्पॉसिबल हैं। एग्रीकल्चर मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने इसके डिटेल में कभी पढ़ाई नहीं करी है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूं एग्रीकल्चर में, राइट। तो ये मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो इसको काट देते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, ये भी मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मैं इंसानों का डॉक्टर हूं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट वेटनरी साइंस, ये भी हटा देते हैं। एंथ्रोपोलॉजी पॉसिबल है, इसको रहने देते हैं। बॉटनी भी मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि मैंने 11th-12th में पीसीबी पढ़ी हुई है, तो मेरे लिए पॉसिबल है बॉटनी। ठीक है, मैंने बॉटनी पढ़ी हुई है 12th ग्रेड तक। ठीक है, केमिस्ट्री मेरे लिए इम्पॉसिबल है। केमिस्ट्री वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा हुआ है, जिनका ग्रेजुएशन या तो आईआईटी से है, इंजीनियर है, या केमिस्ट्री में ग्रेजुएट है। सिविल इंजीनियरिंग मेरे लिए इम्पॉसिबल है, सिविल इंजीनियरिंग तो पढ़ने नहीं लग जाऊंगा अब मैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेरे लिए पर्सनली इम्पॉसिबल है, इसको हटा देते हैं। इकोनॉमिक्स मेरे लिए पॉसिबल है, इकोनॉमिक्स में जीएस में पढ़ रहा हूं मैं और पढ़ सकता हूं, ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ज्योग्राफी मेरे लिए पॉसिबल है, ज्योग्राफी आई कैन टेक, आई कैन स्टडी, फाइन। जियोलॉजी भी मेरे लिए पॉसिबल है, आई कैन स्टडी, न्यू सब्जेक्ट है बट कोई बात नहीं। हिस्ट्री भी मेरे लिए पॉसिबल है, मैं जीएस में पढ़ रहा हूं, मैं टेक्निकली पढ़ सकता हूं। ठीक है, लॉ मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं लॉयर नहीं हूं। मैनेजमेंट मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं हूं। मैथ्स भी मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैथ्स ना पढ़ना पड़े 10th के बाद, इसीलिए मैं डॉक्टर बना था, तो मैं दोबारा तो पढ़ूंगा नहीं, तो ये भी इम्पॉसिबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मेडिकल साइंस इफेक्टिवली आई कैन टेक, मैं टेक्निकली तो ले सकता हूं मेडिकल साइंस, तो ठीक है। फिलॉसफी ले सकता हूं, तो ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स सिर्फ वही लोग ले सकते हैं कि या तो आप इंजीनियर हो या आप फिजिक्स में ग्रेजुएट हो। जैसे मेडिकल साइंस वही ले सकते हैं या तो आप डॉक्टर हो, या आप डेंटिस्ट हो, या आप नर्स हो, दैट्स इट। तभी, या फिजियोथेरेपिस्ट हो, तभी आप मेडिकल साइंस ले सकते हो, नहीं तो आप मेडिकल साइंस नहीं ले सकते हो। सिमिलरली फॉर फिजिक्स मैं तो नहीं ले सकता हूं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एक ऑप्शनल है जो मैं टेक्निकली पढ़ सकता हूं, तो ठीक है, पॉसिबल है। साइकोलॉजी में टेक्निकली पढ़ सकता हूं, पॉसिबल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ सकता हूं, पॉसिबल है। सोशियोलॉजी में पढ़ सकता हूं, पॉसिबल है। एंड जूलॉजी एक और होगा इस लिस्ट में, जूलॉजी भी मैं पढ़ सकता हूं, ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट स्टेप वाज आई एलिमिनेट द वंस दैट आई कैन नॉट टेक इवन इफ आई वांट टू।
मैं चाह के भी सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से पेपर नहीं दे सकता, बिकॉज हाउ विल आई स्टडी सिविल इंजीनियरिंग, राइट? इनको हटा दिया, अब मेरे पास एक लिस्ट बची, ठीक है। अब ये स्टेप 1 समझ आया सबको? सबसे पहले ये स्टेप करना है, स्कोरिंग वोरिंग सब छोड़ो, पहले ये करो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आई वांट यू टू एटलीस्ट लुक एट ऑल दी ऑप्शनल्स। ये नहीं कि यार आंसर स्कोरिंग है आंसर ले लो, नहीं, लॉजिकल स्टेप वाइज रैशनल डिसीजन मेकिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप समझ आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप। अब जो हट गए थे उनके अलावा देखते हैं। ये तो हट गए थे, ये हट चुके हैं, जो बचे हैं हम उनको देखते हैं। स्टेप 2 क्या है? आई हैव टू एलिमिनेट दोज दैट आई डोंट वांट टू टेक। अब ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट मैं आपको ये आइडिया देता हूं। कुछ ऐसे हैं जो मैं पढ़ना नहीं चाहता, डिटेल में पढ़ सकता हूं बट पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, इनकी बात करते हैं। मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, आपके लिए ऑब्वियसली ये डिफरेंट हो सकता है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मैं पढ़ना नहीं चाहता, जैसे प्रोबेबली मैं बॉटनी नहीं पढ़ना चाहता यार, प्लांट्स के बारे में होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं पढ़ना। मैं पढ़ सकता हूं, मैं ले सकता हूं, बट मुझे देखते ही थोड़ा सा लग रहा है नहीं यार ये रहने दो, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैं जियोलॉजी नहीं पढ़ना चाहता, लगता है नहीं यार ये नहीं, मन नहीं है, एक अंदर से फीलिंग आ रही है, बस सब्जेक्टिविटी है। ज्यादा एलिमिनेट नहीं करूंगा मैं इस बेसिस पे, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे प्रोबेबली लग रहा है कि यार साइकोलॉजी शायद मेरा पढ़ने का उतना मन नहीं है। साइकोलॉजी खराब ऑप्शन नहीं है, साइकोलॉजी अच्छा ऑप्शन है, ये सिर्फ मेरे मन पे है। तो मान लो मैंने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, चलो मैंने बॉटनी को एलिमिनेट कर दिया और मैंने जियोलॉजी को एलिमिनेट कर दिया। अब क्या क्या बच गया उसकी बात करते हैं। अब आई एम लेफ्ट विद वन इज एंथ्रोपोलॉजी, एक में एंथ्रो के साथ बचा है मेरा, ज्योग्राफी ऑप्शन बचा है मेरे पास, हिस्ट्री का ऑप्शन बचा है मेरे पास, मेडिकल साइंस का ऑप्शन बचा है, फिलोसफी का ऑप्शन बचा है, पीएसआईआर बचा है, साइकोलॉजी बचा है, पबैड बचा है, सोशियोलॉजी बचा है और जूलॉजी बचा है। अब इन सब में से मैं कोई एक ऑप्शन लेना है मुझे। तो पहले तो ऑप्शंस नैरो कर लो, यहां तक पहुंच जाओ। इसमें भी मैं कहूंगा कि 2-3 और एलिमिनेट कर लो, ठीक है, इसमें भी 2-3 और एलिमिनेट कर लो। कम टू अ स्टेज वेयर यू आर लेफ्ट विद मैक्सिमम ऑफ 5 ऑप्शनल्स। आप मैक्सिमम 5 के साथ यू आर लेफ्ट विद। मैं बता रहा हूं बहुत टेंडेंसी है यहां पर ये सोचने की, अरे मेरा दोस्त ले रहा है तो ये ले लेते हैं, मन कर रहा है एंथ्रो ठीक लग रहा है एंथ्रो ले लेते हैं, मत करना ये। यू विल रिग्रेट इट एंड यू विल बी मेड टू रिग्रेट इट ईयर आफ्टर ईयर मल्टीपल टाइम्स। आपको बहुत बार बहुत ज्यादा दुख होगा कि आपने ये डिसीजन अच्छे से नहीं लिया। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज फॉलो द प्रोसेस दैट आई एम टेलिंग यू, प्लीज फॉलो द प्रोसेस दैट आई एम टेलिंग यू। कम टू अ स्टेज व्हेन यू आर लेफ्ट विद 5 कि यार ये 5 हैं, इन 5 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। अगर मैं आपको अपनी रियल प्रोसेस बताऊं जो मैंने एक्चुअली करी थी, तो मैंने यहां पर फिर आगे फिर एलिमिनेशन किया था कि यार मेरे को जूलॉजी पढ़ने का तो मन नहीं है, हटाओ इसको, जूलॉजी तो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ज्योग्राफी भी मेरा मन नहीं है तो ज्योग्राफी हटाओ, जियोलॉजी हटाओ, हिस्ट्री में पॉसिबली ले लेता, फिलोसफी मेरा पढ़ने का मन नहीं है, आपका हो सकता है, मेरा मन नहीं है, मैंने फिलोसफी हटाया। साइकोलॉजी मेरा पढ़ने का मन नहीं है, पबैड मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैंने हटाया अपने लिए। यू पॉसिबली कैन टेक दीज ऑप्शनल्स, ये ऑप्शनल्स सारे ठीक हैं और हम डेटा भी देखेंगे, मैं अपनी प्रोसेस बता रहा हूं। तो आई हैड कम टू दीज 5, कौन से 5 हैं? एंथ्रो, हिस्ट्री, मेडिकल साइंस, पीएसआईआर, सोशियो, इन 5 पे आ गया मैं। सो आफ्टर दिस एलिमिनेशन आई केम टू दीज 5, एंथ्रो, सोशियो, हिस्ट्री, पीएसआईआर, मेडिकल साइंस, ठीक है। अब जब इन 5 पे आप आ जाओ, देन लेट अस मेक एन एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल बनाते हैं, आपको इन तीनों फैक्टर्स पे इनको रैंक करना है। ये फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस फैक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये मैंने यहां टाइम टू कंप्लीट क्यों लिखा है मैं बताऊंगा, क्यों लिखा है मैं बताऊंगा, बट ये फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इन दोनों पैरामीटर्स पे इसको स्कोर करना है। स्कोरिंग में गिव द मार्क्स आउट ऑफ 20, स्कोरिंग में गिव मार्क्स आउट ऑफ 20, इंटरेस्टिंग में गिव मार्क्स आउट ऑफ 10। स्कोरिंग में मार्क्स देने हैं आउट ऑफ 20, इंटरेस्टिंग में मार्क्स देने हैं आउट ऑफ 10। टाइम टू कंप्लीट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने क्यों लिखा है यहां पे वो मैं समझाऊंगा।
स्कोरिंग कैसे चेक करना है? स्कोरिंग चेक करते हैं हम प्रीवियस ईयर डेटा के बेसिस पे। ब्रॉडली ये मतलब है कि देखो यार, मेरे लिए स्कोरिंग ऑप्शनल का मतलब है एनी ऑप्शनल लास्ट ईयर 2024 में जो लेटेस्ट मार्कशीट्स अवेलेबल हैं उसमें सबके ही ऑप्शनल्स में कम नंबर आए थे। एनी ऑप्शनल दैट गेट्स ऑन एवरेज 260 प्लस मार्क्स इज अ स्कोरिंग ऑप्शनल एज पर 2024 मार्कशीट। 2024 में सारे ही ऑप्शनल्स में कम नंबर आए हैं, सबको स्केल डाउन किया गया है। तो 2024 के हिसाब से एनी ऑप्शनल दैट इज गेटिंग 260 प्लस ऑन एवरेज, इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल स्कोरिंग है। एटलीस्ट ऐसे 5-6 लोग होने चाहिए जो 260 प्लस उस ऑप्शनल में ले आए। इट डज नॉट मीन कि सबके आ जाएंगे। ये 260 प्लस कौन है? ये 260 प्लस सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने सारे स्टेज ऑफ द एग्जाम क्लियर करे, मतलब ये लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। बट ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि यार इफ आई बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट, इफ आई एम अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, देन आई शुड बी एबल टू गेट 260 प्लस, राइट? अगर किसी के भी नहीं आ रहे, लेट्स से एक ऑप्शनल है बॉटनी फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता बॉटनी के स्कोर्स क्या हैं, बट लेट्स से बॉटनी में आज तक किसी के 250 प्लस आए ही नहीं, तो खराब ऑप्शनल है। झंडा उठा के मत चलना कि आज मैं ही अब बॉटनी का पॉल बेयरर हूं, टॉर्च बेयरर हूं, और मैं ही अब दिखाऊंगा कि देखो बॉटनी से मैं क्लियर करके आया हूं। नहीं, मत करना प्लीज, ठीक है? आपको सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना है तो आईएएस बनने के बाद लड़ लेना, बहुत मुद्दे मिलेंगे, अभी मत लड़ो, ठीक है? तो पिक एन ऑप्शनल जहां पर एटलीस्ट 5 से 6 लोगों के 260 प्लस नंबर आ रखे हैं। अगर 5 से 6 लोगों के 260 प्लस मार्क्स आए हुए हैं, if more than 5 people have scored 260 plus marks, that means this is a scoring optional. Okay, so we can only check scoring on the basis of past data. How can I check if an optional is interesting? For this there is a simple exercise. The simple exercise is you need to read the syllabus of this optional. Read the syllabus line by line. Okay, maybe read a little bit about the option. जैसे सिलेबस में आप फिलोसफी का ऑप्शन आपने देखा, एक आधी यूट्यूब पे क्लास देख ली, सारथी आईएएस पे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सारे ऑप्शनल के टीचर्स की क्लासेस यूट्यूब पे हैं, एक आधी क्लास देख ली। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको वो ऑप्शनल नहीं लेना होगा और आप उस सब्जेक्ट को छोड़ दोगे, यही होगा ना, कोई बात नहीं, छोड़ देना। एक क्लास देखने से आपका कोई टाइम भी नहीं जाएगा, यूट्यूब पे देखनी है, एक आधी क्लास देख ली और सिलेबस पढ़ लिया। वॉच वन क्लास एंड सी द सिलेबस, दैट्स इट। इतने में हो जाएगा, दिस वुड सॉर्ट थिंग्स आउट फॉर यू, इतने में बात बन जाएगी, ठीक है? इसके बेसिस पे आप आइडिया ले लोगे कि हाँ यार ये मैं पढ़ सकता हूं या नहीं, बस इतना कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग इनफ टू रीड है या नहीं है, ठीक है? अब यहां पर मैंने टाइम टू कंप्लीट क्यों लिखा? सिर्फ इस सब्जेक्ट की वजह से। आइडियली मेरा मेडिकल साइंस में टाइम टू कंप्लीट कम होना चाहिए था, बिकॉज मैं इंडिया के सेकंड बेस्ट कॉलेज से हूं, मतलब बाय फार इट इज द सेकंड बेस्ट कॉलेज, ठीक है? फर्स्ट एम्स दिल्ली है, सेकंड मैंसी है, ऑलमोस्ट ऑल डॉक्टर्स विल टेल यू द सेम थिंग। तब भी मुझे पता है मैंने कॉलेज कैसे पास किया है, ठीक है? मतलब इंडिया के लिए, जनरली इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है कि मैंने मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करी। जिस बेसिस पे मैंने कॉलेज पास किया है और जैसे मैंने कॉलेज में पढ़ाई करी है, इंडिया के लोगों के लिए काफी सेलिब्रेट करने की बात है कि मैंने कभी मैं डॉक्टर नहीं बना, बिकॉज नहीं था मेरे में वो स्किल जो रिक्वायर्ड होता है। तो मुझे लगा यार जब मैं कॉलेज में ही नहीं पढ़ पा रहा था मेडिकल साइंस, तो यूपीएससी के लिए तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, यहाँ तो प्रोफिशिएंसी लानी है। तो जस्ट ऑन दिस बेसिस मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया यहां से, ठीक है? देन आई वाज लेफ्ट विद 4। अभी तक प्रोसेस समझ आ रहा है? डेटा भी देखते हैं, प्रोसेस समझ आ रहा है? पहले इम्पॉसिबल को एलिमिनेट करो, फिर सेकंड उनको एलिमिनेट करो जो मैं नहीं लेना चाहता, फिर 4 या 5 की लिस्ट बचेगी, उस 4-5 को देखो, ठीक है? 4 या 5 की लिस्ट बचेगी, उन 4-5 को देखो, ठीक है? समझ आ रहा है? लॉजिकल है? अब स्कोरिंग कैसे देखना है, इंटरेस्टिंग कैसे देखना है? इंटरेस्टिंग देखने का सिंपल तरीका है कि यार सिलेबस रीड किया,
और एक क्लास यूट्यूब पे देख ली, सारथी आईएएस के चैनल पे जाओगे, यूट्यूब पे सारे ऑप्शनल्स की क्लासेस हैं, देख लो। वैसे यूट्यूब पे सर्च कर लो हिस्ट्री ऑप्शनल डेमो क्लास, सर्च कर लो, मिल जाएगी। ठीक है, स्कोरिंग का डेटा देखते हैं। जब मैंने डेटा देखा, मैंने यहां पर आइडेंटिफाई किया था, अपने टाइम का बता रहा हूं, कि ये एंथ्रो, सोशो और पीएसआईआर, मैंने पर्सनली ये आइडेंटिफाई किया था कि ये तीनों सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, और इसमें एक डिसेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे लग रहा है। हिस्ट्री भी स्कोरिंग है, बट इंटरेस्ट शायद उतना ज्यादा मेरा नहीं है, मेरा उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो हिस्ट्री को फिर मैंने हटाया और मैं इन तीनों पे आ गया, एंथ्रो, सोशो एंड पीएसआईआर। आई केम टू दीस थ्री। तीनों मुझे लगा स्कोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है। अब जब तीनों स्कोरिंग है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने एंथ्रो पिक किया, क्योंकि मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, एंथ्रो में बायोलॉजी काफी है। ठीक है, अब आप लोगों को ये स्कोरिंग का डेटा देखना है, तो अब इस डेटा को मैं आपके लिए अपलोड करा दूंगा, इस डेटा को। ठीक है, तो अगर आपको दोबारा रेफर करना हो, करना ही पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट 10 डेज। एक डिसीजन हम आज ले लेते हैं कि अगले 10 दिन में हम अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। चाहे पढ़ना हम अप्रैल में स्टार्ट कर दें, ये डिसीजन ज्यादा डिले नहीं करते। ठीक है, अब ये है 1035 इंटरव्यू अपियरिंग कैंडिडेट्स 2025 का डेटा। ये वही है जिसमें 750 सारथी आईएएस के स्टूडेंट हैं, और बाकी फिर दूसरी कोचिंग के होंगे, वो हमारे पास सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आए हैं। ये 1035 कैंडिडेट्स का डेटा है, इसमें इनके मार्क्स नहीं लिखे हैं। यू विल नॉट सी देयर मार्क्स हियर बिकॉज मार्कशीट्स आई नहीं है। ये सिर्फ ये डेटा है कि किस ऑप्शनल से लोग इंटरव्यू दे रहे हैं 2025। इन 2025 पीपल हु हैव क्लियर्ड मीन्स, उनका डेटा है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा इस साल लोगों ने सोशियोलॉजी ऑप्शनल से क्लियर किया है, तो सोशियोलॉजी इज एट नंबर 1, देन सेकंड पीएसआईआर, थर्ड एंथ्रो। ऑब्वियसली ये डेटा लिमिटेड है, 3000 लोग मेंस क्लियर करते हैं, हमारे पास 1000 का ही डेटा है, तो पूरा डेटा नहीं है, बट हाँ सोशियोलॉजी, पीएसआईआर एंड एंथ्रो अभी भी तीनों टॉप पे हैं। द फोर्थ वन दैट वी सी इज हिस्ट्री, फिफ्थ वन वी सी इज मैथ्स, सिक्स्थ इज ज्योग्राफी, सेवेंथ इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एट्थ इज हिंदी लिटरेचर, नाइन्थ इकोनॉमिक्स और 10th मेडिकल साइंस। अब इस डेटा में थोड़ा सा झोल है। झोल ये है कि पबएड के यहां पर 40 ही लोग हैं और सोशो के 217 लोग हैं, तो आपको लगेगा पबएड तो बहुत कम स्कोरिंग ऑप्शनल है एज कंपेयर टू सोशो। बट एक यहां पर प्रॉब्लम है, सोशियोलॉजी में मेंस देने वाले लोग हैं 1000, पबएड में पता चलेगा कि मेंस देने वाले लोग हैं 50, तो यहां 50 में से 40 क्लियर कर रहे हैं, वहां 1000 में से 200 क्लियर कर रहे हैं। तो इस डेटा को डायरेक्टली ऐसे मत देखना कि बस सोशो में 200 है तो सोशो बेस्ट है, नहीं। ये आप ब्रॉडली अंदाजा लगा सकते हो कि जितने ऑप्शनल्स यहां लिखे हैं ये सारे ऑप्शनल स्कोरिंग है, जितने यहां लिखे हैं ये सारे स्कोरिंग है। दिस डज नॉट मीन सोशियोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शनल, इट डज नॉट, बट आई कैन टेल यू that since there are more than 50 people who are clearing mains, 50 से ज्यादा लोग अगर किसी ऑप्शनल से मेंस क्लियर कर रहे हैं, मतलब वो ऑप्शनल डिसेंटली स्कोरिंग है। ये सारे ऑप्शनल्स डिसेंटली स्कोरिंग है जो यहां लिखे हैं। दिस शुड टेल यू दिस, बिकॉज यार अगर लेट से 40 people can get good marks in public administration, then even you can if you study well. समझ आ रही है बात? ये सारे ऑप्शनल्स डिसेंटली स्कोरिंग है। This does not mean that sociology is the best. This is 217 out of how many we don't know. ये डेटा यूपीएससी ने अभी तक नहीं दिया, यूपीएससी 3 साल के डिले पे डेटा देता है। तो 217 है तो सही, 217 ने मेंस क्लियर किया सोशियोलॉजी के साथ, बट कितनों ने दिया ये नहीं लिखा। हमें इससे ये समझ आना चाहिए कि जो भी ऑप्शनल्स यहां लिखे हैं, दोबारा पढ़ लेता हूं, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, पबएड, हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और मेडिकल साइंस, ये डिसेंटली स्कोरिंग ऑप्शनल्स हैं, क्योंकि इसमें एटलीस्ट नहीं तो 30 लोग तो हैं
जिन्होंने अच्छे नंबर लेके मेंस क्लियर किया है। समझ आई बात? दीज आर एटलीस्ट डिसेंटली स्कोरिंग ऑप्शनल्स। ये सारे ऑप्शनल्स डिसेंटली स्कोरिंग हैं। समझ आई बात? सोशो बेस्ट नहीं है, मेडिकल साइंस वर्स्ट नहीं है, ये सारे डिसेंट है। समझ आ गई? ठीक है यार, हिंदी लिटरेचर है तो सही यहाँ पे। ये सारे डिसेंटली स्कोरिंग हैं, इनमें मार्क्स कितने आए हमें भी नहीं पता, क्योंकि ये डेटा इस साल का है, 2025 का डेटा है। ये डेटा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो 2022 का डेटा मिलेगा। इसीलिए ये बात को समझो, ये सारे ऑप्शनल बढ़िया हैं। इनमें से अगर आप कोई सिलेक्ट कर रहे हो, इफ यू आर सिलेक्टिंग वन ऑफ दीज, तो आप बढ़िया सिलेक्ट कर रहे हो। एक मैं और इसमें ऐड कर देता हूं, जो शायद इस लिस्ट में आ नहीं पाया, वो था फिलॉसफी। आई थिंक फिलॉसफी में 28 लोग थे, यहां पे लिखना हमारा रह गया है, तो फिलॉसफी को मैं और ऐड कर देता हूं। फिलॉसफी इज वन मोर ऑफ सच ऑप्शनल्स। फिलॉसफी ऑल्सो इज अ गुड ऑप्शनल। इन सारे ऑप्शनल्स में डिसेंटली लोगों के मार्क्स आते हैं। ठीक है, ये डेटा तो कंफर्म्ड है। बाकियों में आते हैं या नहीं, आई डोंट नो। दिस डज नॉट मीन दैट द अदर्स आर बैड। देखो, डेटा लिमिटेड है, तो कम डेटा से हमें इंटरप्रेट करना है, तो ऐसे ही होगा। मेरे पास या तो सारे बच्चों की सारी मार्कशीट्स हों, अगर मुझे कोई दे दे तो मैं आपको बता दूंगा, बट मेरे पास भी लिमिटेड डेटा है, मुझे लिमिटेड डेटा से इंटरप्रेट करना है, राइट? सो लिमिटेड डेटा से इंटरप्रेट करके आपको बता रहा हूं। ये सारे ऑप्शनल जो यहां लिखे हैं, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, एंथ्रो, हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिकल साइंस एंड फिलोसफी, ये सारे ऑप्शनल्स डिसेंटली स्कोरिंग हैं। इन ऑप्शनल्स में आपके मार्क्स आ सकते हैं, आप एक डिसेंट मार्क्स ले आओगे। ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ऑप्शनल्स खराब हैं। इसका नॉर्मलाइजेशन से क्या लिंक है? होती है नॉर्मलाइजेशन ऑप्शनल में, कैसे होती है किसी को नहीं पता, किस ऑप्शनल के साथ अच्छी होगी खराब होगी किसी को नहीं पता। कोई अगर आपको बता रहा है कि देखो इस साल ये नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, तो आपके साथ झूठ बोल रहा है, या उनकी ज्यादा नहीं, बस हमारे प्राइम मिनिस्टर तक की पहुंच है। ठीक है, तो अदर देन द प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट थिंक देयर बी एनीबॉडी हु कैन ऑफिशियली टेल यू कि इस ऑप्शनल के साथ ऐसे नॉर्मलाइजेशन होने वाली है। ठीक है, मे बी इवन द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट नो। ठीक है, तो सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, एंथ्रो, हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिकल साइंस एंड फिलोसफी, these are optionals that you possibly can take which are scoring. This does not mean that other optionals are not scoring. This does not mean that these are the best optionals. These are definitely scoring. समझ आई बात? ये सिंपल सी बात है यार, अगर ये समझ नहीं आ रही है तो हमें दिक्कत हो जाएगी आगे। इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इससे सिंपली मैं ये बात को समझा नहीं सकता। ये बात समझ आ रही है इसमें? ठीक है, ठीक है, डन। अच्छा, अब ये डेटा है ऑप्शनल के मार्क्स का। ऑप्शनल के मार्क्स का डेटा है, ये मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। दिस इज डेटा ऑफ ऑप्शनल मार्क्स। ठीक है, ये कौन सी ईयर का डेटा है? ये डेटा है 2024 का, हमारे ही स्टूडेंट्स का डेटा है। इनमें से कई लोग सारथी के ही ऑप्शनल के भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 2024 का डेटा है। आपको मैंने सिंपल बोला था, कोई भी ऑप्शनल जिसमें 260 प्लस मार्क्स आ रहे हो ऑन एवरेज, वो बहुत अच्छा ऑप्शनल है। ठीक है, एक एक करके सारे पढ़ता हूं। एंथ्रोपोलॉजी में हमें 30 मार्कशीट्स मिली और एवरेज था 263। मतलब एंथ्रोपोलॉजी एक डिसेंटली स्कोरिंग ऑप्शनल रहा है। इस साल भी बहुत लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी से क्लियर किया है, लास्ट ईयर भी मार्क्स के बेसिस पे भी काफी डेटा है, और 30 लोगों का डेटा है। नंबर ऑफ मार्कशीट पर भी डिपेंड करता है ना। मान लो मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक मार्कशीट मिले, उसके 310 नंबर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। नंबर ऑफ मार्कशीट्स आल्सो मैटर। तो 263 मार्क्स एवरेज, 30 मार्कशीट्स मिली, तो एंथ्रो तो डिसेंटली स्कोरिंग है। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, 12 मार्कशीट मिली, काफी मार्कशीट्स मिली, 266 एवरेज बन रहा था,
तो हिस्ट्री भी एक डिसेंटली स्कोरिंग ऑप्शनल है। सोशियोलॉजी अगेन 260 प्लस बन रहा था, 293 तक भी गया है, बहुत सारी मार्कशीट्स मिली 2024 में, 2025 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया सोशियोलॉजी ने, तो सोशियोलॉजी भी एक डिसेंटली स्कोरिंग ऑप्शनल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मार्कशीट्स लास्ट ईयर कम मिली, हमें मिली ही नहीं, दिस इज जस्ट द नंबर वी फाउंड, बट स्कोर अच्छा था, इस बार भी 40 प्लस लोगों ने क्लियर किया है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक डिसेंट ऑप्शनल है। ठीक है, पीएसआईआर अच्छे मार्क्स हैं पीएसआईआर में, और अच्छी नंबर ऑफ मार्कशीट्स भी हैं, 27 काफी हाई है, इस बार भी अराउंड 207 लोगों ने क्लियर किया है 2025 में, तो पीएसआईआर भी एक डिसेंटली स्कोरिंग ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलॉसफी की बात करते हैं, मार्क्स आर डिसेंट, मार्कशीट्स कम मिली हैं, बट उसके लिए हमारे पास इस साल का डेटा है, 28 बच्चों ने इस साल भी क्लियर किया है, तो फिलॉसफी भी एक डिसेंट ऑप्शनल है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी भी ऑब्वियसली डिसेंट ऑप्शनल है, 13 मार्कशीट्स हैं, 263 एवरेज है, तो अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स में मार्क्स थोड़े कम मिले, लास्ट ईयर थोड़े कम मिले, बट क्योंकि नंबर ऑफ मार्कशीट्स ही इतनी कम है, तो मैं ज्यादा कमेंट कर नहीं सकता हूं, राइट। इकोनॉमिक्स मेरी एक एडवाइस रहेगी, मैं चलो हर ऑप्शन पे अपनी एक एडवाइस आपको दूंगा आफ्टर आई एम डन रीडिंग दिस टेबल, हर ऑप्शन पे मैं कुछ एडवाइस आपको जरूर दूंगा। साइकोलॉजी 3 ही मार्कशीट है बस, स्कोर ठीक है, तो साइकोलॉजी भी एक डिसेंट ऑप्शनल लगा इस बार, लेकिन इस बार इस डेटा में साइकोलॉजी का नाम नहीं था, बहुत कम लोग थे जिन्होंने 2025 में साइकोलॉजी लेके क्लियर किया हो, काफी कम थे, तो साइकोलॉजी का इस डेटा में नाम नहीं था, इसलिए मैं साइकोलॉजी आपको अभी रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको सोशियोलॉजी अदरवाइज, आपको साइकोलॉजी अदरवाइज सही लग रहा है, गो फॉर इट। हिंदी लिटरेचर 5 मार्कशीट मिली लास्ट टाइम, 254 मार्क्स थे, ठीक मार्क्स हैं, कम नहीं है, 260 से थोड़े ही आसपास ही हैं, 5 मार्कशीट्स हैं, इस बार भी अच्छा किया है। अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी लिटरेचर को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। मैथ्स तो होता ही है थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग, 10 मार्कशीट्स मिली, 273 मार्क्स आए हैं, तो मैथ्स तो अच्छा है। मेडिकल साइंस पे मैं अपना ओपिनियन खुद दूंगा आपको, मेडिकल साइंस मैंने बहुत अच्छे से, मुझे पता है ऑप्शन की क्या कहानी है, मेडिकल साइंस का ओपिनियन डेफिनेटली आई विल गिव यू। मार्कशीट्स 4 हैं, स्कोर डिसेंट है। फिजिक्स में 3 मार्कशीट्स हैं, और ऑब्वियसली स्कोर काफी हाई है, फिजिक्स काफी स्कोरिंग ऑप्शन है, बट 3 ही मार्कशीट्स मिली हैं, तो 3 के बेसिस पे कमेंट करना वैसे थोड़ा सा मुश्किल है। अब हर ऑप्शनल पे मैं एक कमेंट या अपने साइड से जो मेरा एनालिसिस है, मैं आपको हर ऑप्शनल का एक एनालिसिस दे देता हूं, ठीक है, किसको ये ऑप्शन लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, है ना। मैं चाहता ही नहीं यार आपको कोई ऐसी बात बोलूं जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग सीरियसली लोगे, तो मेरे ऊपर भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दैट आई शुड ओनली टेल यू थिंग्स दैट आई हैव कॉन्क्रीट डेटा फॉर। तो मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं वो कॉन्क्रीट डेटा के बेसिस पे बता रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा आपको, राइट, ताकि बाद में आके मुझे नहीं चाहिए ये कि कोई मुझे आके बोले सर आपके कहने पे मैंने ये ऑप्शन ले लिया और देखो इसमें ना। दैट इज वाई आई एम गिविंग यू एब्सोल्यूट कॉन्क्रीट डेटा। आई होप इस बात को आप अप्रिशिएट करोगे और उतना ही वैल्यू करोगे, ठीक है। तो एक एक ऑप्शनल पे अब मैं इन ऑप्शंस पे जो यहां लिखे हैं मैं इन्हीं पे कमेंट्स कर सकता हूं, यही मेरे स्टूडेंट्स ने ऑप्शंस दिए हैं जिन्होंने सिलेक्ट हुए हैं, इन लोगों से मैंने काफी बात भी करी है जिनकी मार्कशीट यहां पर हैं, तो अब मैं इन्हीं पर कुछ कमेंट आपको दूंगा, ठीक है। ऑन दैट बेसिस दैट इज जस्ट माय एडवाइस, यू कैन टेक दैट एडवाइस और लीव दैट एडवाइस, दैट इज अप टू यू, बट सुनना ध्यान से, ठीक है। हर ऑप्शनल जो यहां पे लिखा है मैं सब पे कुछ ना कुछ आपको बता सकता हूं, जो मैंने खुद फील किया है या मैंने अपने स्टूडेंट से बात की है जो सिलेक्ट हो गए हैं, उन्हीं से बात की है जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। बट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा डिसीजन अपने बेसिस पे भी रखना। सबसे पहला ऑप्शन यहां पे लिखा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को लेके मेरी एडवाइस बहुत सिंपल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, नटराज सर बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, नटराज सर के खुद 300 प्लस नंबर आए हैं, मैंने पढ़ाई ऑप्शनल, छोटा ऑप्शनल नहीं है, इट इज नॉट अ स्मॉल ऑप्शनल, ठीक है, बट काफी पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, पीवाईक्यू बेस्ड है। अगर आपको साइंटिफिक माइंडसेट से दिक्कत नहीं है, जैसे
आप या तो कई लोग होते हैं ना कि मेरे को तो साइंस देखना ही नहीं यार, अगर आप ऐसे हो तो मत लेना। लेकिन अगर आपको साइंटिफिक माइंडसेट से दिक्कत नहीं है और थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ इंक्लिनेशन है, इस ऑप्शन में ना 5 चीजें हैं, मैं बता देता हूँ 5 ही चीजें हैं। एक चीज है इसमें कॉल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें आप बेसिकली ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हो। बहुत ज्यादा बायोलॉजी नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक, बट थोड़ा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड चाहिए, जीन्स जेनेटिक्स थोड़ा उस टाइप का बेंट ऑफ माइंड चाहिए। आप मेरे से साइंस एंड टेक पढ़ोगे, वैसे भी आपको बेंट ऑफ माइंड बनाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज अबाउट एंथ्रोपोलॉजी इसमें है आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व किए हैं, एवोल्यूशन और आर्कियोलॉजी की डिस्कशन है, काफी अच्छा है। तो ये तो वो चीज है जो थोड़ी सी साइंटिफिक है। जो इसमें दूसरी चीज है वो है सोशल तरह से। तो इट इज अबाउट कास्ट, इट इज अबाउट ट्राइब्स एंड इट इज अबाउट द सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि मैरिज कैसे शुरू हुई दुनिया में, रिलीजन कैसे शुरू हुआ, फैमिली कहां से आती है, किनशिप कैसे डेवलप हुई, राइट, हाउ आर रिलेशनशिप्स फॉर्म्ड, कल्चर क्या होता है, राइट, दीज थिंग्स आर देयर। अगर आपको ये डिसेंटली इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसे रिपल्शन नहीं लगती कि यार ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, अगर लगता है ठीक लग रहा है पढ़ लूंगा, तो बहुत अच्छा ऑप्शनल है। पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, मटेरियल बहुत अच्छा अवेलेबल है, एआई के आने के बाद यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड डिसेंटली हाई स्कोरिंग ऑप्शनल इज देयर। तो ये ऑप्शनल तो अच्छा है। आई वुड से दिस इज अ फेयरली गुड ऑप्शनल फॉर एनीबडी हु वांट्स टू टेक इट। हिस्ट्री, जीएस की हिस्ट्री से थोड़ा सा अलग है। इट इज नॉट एग्जैक्टली जीएस की हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स डिस्कस होते हैं यहाँ पे। एक इवेंट हुआ यार, जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अभी उतना हिस्ट्री पढ़ा नहीं है बट कई इवेंट्स तो आपको पता होंगे, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ या फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लेट्स से वर्ल्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन को कोई हिस्टोरियन तो कह रहा है कि देखो दिस वाज अ रेवोल्यूशन फॉर डेमोक्रेसी, कोई कह रहा है नहीं ये डेमोक्रेसी का रेवोल्यूशन नहीं था, ये एक्चुअली एक ऑप्रेस्ड क्लास का ऑप्रेसर के अगेंस्ट रेवोल्यूशन था एंड दिस लेड द फाउंडेशंस फॉर द आइडिया दैट कार्ल मार्क्स गेव। कोई कह रहा है नहीं ये एक फॉरेन पावर के द्वारा कराया गया रिवोल्ट था। अब दीज आर डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। जैसे इंडिया में वॉर ऑफ 1857 हुआ, कोई कह रहा है कि ये तो एक इंपीरियल स्ट्रगल था, ये वही किंगडम्स जो पहले राजा थे वो अब वापस से राजा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, ये तो एक इंपीरियल पावर स्ट्रगल है, लोगों का पावर स्ट्रगल नहीं है। वहीं कोई कह रहा है कि नहीं दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज एक्चुअली द इंडियन पीपल राइजिंग अप अगेंस्ट अ कॉलोनियल पावर। एंड तीसरी जगह पे कोई कह रहा है नीदर वाज इट फर्स्ट, नीदर वाज इट अ वॉर, नॉर वाज इट फॉर इंडिपेंडेंस। अब सेम इवेंट है बट अलग अलग एनालिसिस हो रहा है। अगर आपको पसंद आता है तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा लंबा है सब्जेक्ट, जीएस में आपकी हेल्प जरूर करेगा। सब्जेक्ट बड़ा है, छोटा तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ये एक चीज है। बट हाँ, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, हिस्ट्री वैसे आपको बढ़िया लगती है तो गो फॉर इट। डेट वगैरह याद नहीं करनी होती ऑप्शनल में, पर्सपेक्टिव्स याद करने होते हैं। सोशियोलॉजी काफी बढ़िया ऑप्शनल है, काफी अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आई थिंक इन 3 ऑप्शन में तो आप आंख बंद करके सारथी आईएएस के टीचर्स को ट्रस्ट कर सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। सोशियो में भी मैं कहूंगा कि अगर आपको जनरली सोसाइटी के बारे में पढ़ना पसंद है, वही एंथ्रो वाला पार्ट ही है, इट इज कास्ट ट्राइब एंड सोसाइटी। एंथ्रो में ये पार्ट कम डिटेल में होता है, यहां पर काफी डिटेल में है। एंथ्रो इज बेसिकली दिस पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी प्लस some biology also and some history also. Socio is just this discussion on caste, on tribe, on society. अब आपको लगेगा यार सोशो तो फिर बहुत छोटा ऑप्शनल है, नहीं, क्योंकि सिर्फ इतना ही डिस्कस होना है तो बहुत डिटेल में डिस्कस होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है कास्ट सिस्टम के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, आपको इंटरेस्ट है कि रिलीजन के बारे में वेरियस फिलोसफर्स ने क्या बोला, वेरियस थिंकर्स ने क्या बोला, कि रिलीजन क्यों है हमारी लाइफ में, is it because we don't understand where the world came from, or is it because we want some comfort in times of discomfort, or is it because humans always seek a community, or is there something sacred or supernatural about it? इस टाइप का एनालिसिस। मैरिज जो है, इज मैरिज समथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर अ सोसाइटी? क्या एनिमल्स में भी मैरिज देखी जाती थी? इज मैरिज समथिंग विच इज एसेंशियल
फॉर आवर सोसाइटी टू फंक्शन, या मैरिज के बिना भी हमारी सोसाइटी फंक्शन कर सकती है? फिर ऐसी कहीं कहीं मैरिज क्यों होती है दैट वन पर्सन इज मैरिंग टू स्पाउसेस? वहां पे सोसाइटीज में कैसे काम होता है? दैट इज सोशियोलॉजी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट स्कोरिंग वाइज बढ़िया ऑप्शनल है, टाइम से खत्म होगा, मटेरियल अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों ऑप्शनल स्कोरिंग तो काफी है यार, आप देख ही रहे हो, इस बार भी परफॉर्मेंस देख रहे हो, डिसेंटली स्कोरिंग है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर यू क्लियर दिस एग्जाम। आप उसके बाद भी यही पढ़ने वाले हो। बीच में एक टाइम आया था अराउंड 2016, 17, 18, 19, जब इस ऑप्शनल में नंबर नहीं आ रहे थे, बट दिस ऑप्शनल इज नाउ गेटिंग अ रिवाइवल। अब इसमें बढ़िया नंबर आ रहे हैं, लोग क्लियर कर रहे हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं। अगेन इट इज ब्रॉडली लाइक गवर्नेंस। अगर आपको यही पढ़ना है कि इंडिया को गवर्न कैसे करना है, एथिक्स में हेल्प करेगा, गवर्नेंस में हेल्प करेगा, और काफी अलाइन टू द जॉब दैट यू आर गोइंग टू डू लेटर है। इट्स अ गुड ऑप्शनल दैट वे, ठीक है, लेकिन बड़ा है, लेंथ इसकी काफी हाई है, छोटा ऑप्शनल नहीं है, टाइम लगेगा, बट ठीक है, जितना हिस्ट्री में लगेगा उतना ही लगेगा। आजकल नंबर इसमें फिर से आ रहे हैं तो आप ले सकते हो। मे बी 10 years अर्लियर आई वुड हैव टोल्ड यू कि नहीं मत लो, बट टुडे आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि ले लो, मार्क्स ठीक आ रहे हैं। TSIR ऑलमोस्ट सेम सिलेबस, कॉन्करेंट विद GS2, तो GS में तो हेल्प करता है डेफिनेटली, बट इस ऑप्शनल के बारे में सिर्फ अच्छी बातें हैं, वेरी गुड ऑप्शनल, पढ़ने में मजा आएगा, काफी कुछ है इसमें, ठीक है। दिक्कत यहां पर यह है कि अगेन बड़ा है, एक तो लेंथ इज बिग, एंड अगेन लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स। जैसे आपको थिंकर्स काफी पढ़ने पड़ेंगे, कई लोगों को वो इंटरेस्टिंग लग सकता है, जैसे मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, तो मुझे तो सही लगा था, बट अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो अलग बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेटो ने क्या बोला, एरिस्टोटल ने क्या बोला, हैना आरेंट क्या बोलती हैं, राइट? ये जो थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स हैं, इन पे काफी क्वेश्चन आते हैं। ये एक मेजर पार्ट है, इट्स कॉल्ड इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। शुरू में आप देखोगे तो इस पे काफी डिस्कशन होती है कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सोक्रेटिस, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ प्लेटो, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ एरिस्टोटल, इन लोगों का क्या आइडिया था अबाउट हाउ अ स्टेट शुड बी, थॉमस हॉब्स ने क्या बोला, सेंट एक्वाइनस ने क्या बोला, ये सारे थिंकर्स की डिस्कशन काफी है। अगर आपको पॉलिटिकल थिंकिंग में उस लेवल पे इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर दिस, ठीक है। आगे फिलॉसफी, फिलॉसफी जीएस में हेल्प करता है, एसए में तो काफी हेल्प करता है। थोड़ा सा एक हायर लेवल की थिंकिंग आप यहाँ पे सीखोगे, राइट? जैसे अभी आपने देखा था वो जावेद अख्तर साहब एंड देयर वाज दिस अदर पर्सन, जिनके बीच में एक डिस्कशन, एक यूट्यूब पे बहुत वीडियो वायरल हुई थी कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो वहां पर वो जो दूसरे पर्सन थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट किया था, इनफाइनाइट एग्रेशन ऑफ कॉजेज और कंटिंजेंट बीइंग वगैरह की बात की थी। अगर आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, उस टाइप की बात होती है फिलॉसफी में। अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगता है तो फिलॉसफी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, राइट? इस आर्ग्यूमेंट का लॉजिक क्या है कि भगवान है या नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर किया जा रहा है ये बोल के कि देखो, वर्ल्ड में जो भी है वो सब किसी चीज पर डिपेंडेंट है। जैसे मैं यहाँ क्यों हूँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद से अच्छे से पढ़ाई करी थी। मैंने खुद से अच्छे से क्यों पढ़ाई करी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा, मुझे माहौल दिया, मैं सोचता था। मुझे माहौल क्यों मिल पाया, क्योंकि शायद मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपने टाइम पे पढ़ाई करी थी। तो हर चीज किसी चीज पे डिपेंडेंट है। तो टुवर्ड्स द एंड देयर हैज टू बी समथिंग, दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस, दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस, दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस, दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस। तो एंड में कुछ जरूर होगा जिस पे सब कुछ डिपेंडेंट होगा, और वो एक क्रिएटर है, वो एक गॉड है। ये आर्ग्यूमेंट था, कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट, जो उस डिबेट में एक जो जावेद अख्तर साहब के सामने जो बैठे थे वो दे रहे थे। तो इस टाइप की बातें अगर आपको पता पसंद आती हैं अबाउट एपिस्टेमियोलॉजी, अबाउट नॉलेज, अबाउट अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, कि कहीं पे अगर आग, कहीं पे अगर स्मोक है तो क्या जरूरी है वहां पे आग लगी हुई हो, अगर दिस इज समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड तो आपको एक ऑप्शन काफी पसंद आएगा। स्कोरिंग है, मार्क्स आ रहे हैं, इस बार भी डिसेंट परफॉर्मेंस की है। विश्वजीत सर सारथी आईएएस में पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी, उनकी यूट्यूब पे काफी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो एक आधी वीडियो देख के आप समझ सकते हो। सर XIAAS ऑफिसर हैं, ऑडिट अकाउंट सर्विस में, यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, तो यू आर गोइंग टू बी टॉट बाय अ गुड पर्सन, ठीक है? तो आप एक आधी वीडियो देख सकते हो। इफ यू एंजॉय समथिंग लाइक दिस देन दिस इज फेयरली इंटरेस्टिंग। ज्योग्राफी,
इफ यू हैव अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड देन दिस इज अ गुड ऑप्शनल. अगर साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है तो ऑप्शनल डिसेंट है. अगेन बड़ा ऑप्शनल है, टाइम लगेगा पढ़ने में, बट हाँ अगर साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है तो डिसेंट ऑप्शनल है. बड़ा है लेकिन जीएस में हेल्प करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा. काफी चीजें हैं इसमें एक फिजिकल ज्योग्राफी वाला एलिमेंट है जो आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, विच इज अबाउट साइक्लोन्स एंड सुनामीज एंड दिस एंड दैट. एंड इसमें एक और कंपोनेंट है, द अदर कंपोनेंट इज गोइंग टू बी अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी के ज्योग्राफिकल प्लानिंग, वेयर आर इंडस्ट्रीज लोकेटेड, थिंग्स लाइक दिस. इकोनॉमिक्स, अगर आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में नहीं है तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ना लें. देखो मैं आपको काफी इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, मेंस में भी मैं आपको जीएस3 पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स भी पढ़ाने वाला हूँ, मतलब और भी काफी इकोनॉमिक्स में यू नो थिंग्स यू आर गोइंग टू रीड थ्रू आउट योर जीएस प्रेप. हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे सब्जेक्ट, आपको लगेगा क्या बढ़िया सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है, बट अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं है तो इकोनॉमिक्स मत लेना. है तो ले सकते हो बिल्कुल, क्योंकि जो ऑप्शनल वाली इकोनॉमिक्स है वो जीएस से काफी अलग है. इसमें काफी ग्राफ्स, काफी डिटेल में जाके इकोनॉमिक्स की बात की हुई है. तो अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो सेंस नहीं बनता. ग्रेजुएशन है, बैकग्राउंड है तो ले लेना, बिना बैकग्राउंड के इकोनॉमिक्स मत लेना. साइकोलॉजी, मैं जनरली साइकोलॉजी में लोगों को काफी अच्छी समझता था, अच्छा रिकमेंडेशन समझता था साइकोलॉजी को. लास्ट 2-3 ईयर्स से परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन है, बस यही रीजन है मेरे पास. अदरवाइज ऑप्शनल अच्छा है, मुझे तो इंटरेस्टिंग भी लगता है, बट मे बी आई फील from last 2 years it has not been performing well based on the data that we have. At least last year तो it has not performed well. ये मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है. अदरवाइज साइकोलॉजी ठीक ऑप्शनल है, ठीक है ले सकते हो. द ओनली फियर आई हैव हियर इज दैट जैसे ये जनरली ये होना नहीं चाहिए था कि यहाँ पे साइकोलॉजी का नाम नहीं है, बट यहाँ पर नहीं है साइकोलॉजी का नाम, तो आई एम अ बिट अफ्रेड बिकॉज ऑफ दैट. तो अगर अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, लेना है ले लो, इट्स अप टू यू. हिंदी लिटरेचर, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हो तो हिंदी साहित्य आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शनल है, आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए, राइट. क्योंकि एक तो अगर आपने हिंदी माध्यम में पढ़ाई करी है तो आप काफी कंफर्टेबल रहोगे इसमें, राइट. और इसके अच्छी खासी गाइडेंस भी अवेलेबल है, ठीक है. तो हिंदी माध्यम के छात्र हो तो ये ऑप्शन आपको डेफिनेटली हाई लेवल पे कंसिडर करना चाहिए, अच्छा ऑप्शनल है, ठीक है. लिटरेचर में जनरली मार्क्स ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है. मैथ्स अगेन ओनली इफ यू हैव अ मैथ्स बैकग्राउंड एंड यू स्टडीड वेल इन कॉलेज. अगर आप मैथ्स सोच रहे हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं अभी, रिंग थ्योरी एक्सप्लेन कर दो. अगर आप अभी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बिना पढ़े, बिना किताब देखे, तो आपको डेफिनेटली मैथ्स लेना चाहिए, ठीक है. मैथ्स में अगर आप पढ़ोगे तो आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बट हाईली स्कोरिंग है. मैथ्स ऑप्शनल वही लोग अच्छा कर पाते हैं या तो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अच्छे से मैथ्स पढ़ा है कॉलेज में. मेरे 3 स्टूडेंट्स जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, तीनों का मैथ्स ऑप्शनल है, वो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, वो इस लिस्ट में यहाँ पे हैं, ये देख रहे हो. इनमें से 3 को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैथ्स ऑप्शनल है, आईआईटीएंस हैं और बढ़िया नंबर लेके आएंगे. बट मैथ्स ऑप्शनल में फिर ये हो जाता है, यू नीड टू लव मैथ्स because your strategy will change a little bit. You will give much more time to your optional and reduce the time you give to GS. So if you love maths, this is a great optional. This will get you a lot of marks. बहुत नंबर लेके आएगा आपके लिए. आपको मैथ्स पसंद होना चाहिए बस. मेडिकल साइंस तो एक तो सिर्फ डॉक्टर्स ही लेंगे और तो कोई लेगा नहीं. अगर अभी तुम्हें जोन्स क्राइटेरिया याद है, मेरे बोले बिना याद, अगर तुम्हें कुछ देखे बिना, कोई रेफरेंस देखे बिना, तुम्हें अभी पता है जोन्स क्राइटेरिया कौन सी बीमारी के लिए होता है और जोन्स क्राइटेरिया है क्या, अगर अभी याद है तो तुम्हारे लिए मेडिकल साइंस अच्छा है. अगर नहीं याद तो मत लेना. इफ यू स्टडीड वेल इन योर फाइनल ईयर एंड योर थर्ड ईयर, यू कैन टेक दिस. इफ यू स्टडीड लाइक मी इन कॉलेज कि बस मैं किसी तरह पास हो जाऊं एक दिन पहले दोस्तों के भरोसे, तो मत लेना. टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा. कोई लिंक नहीं है जीएस से, नंबर ठीक आते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है. मेरा ही स्टूडेंट है श्रेया गर्ग, लास्ट ईयर रैंक 35, मेडिकल साइंस से ऑप्शनल लेके ही हैज नाउ क्लियर्ड एंड ही इज नाउ इन द फॉरेन सर्विस. अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर फाइनल ईयर में अच्छे से पढ़ाई करी है तो ही लेना, वरना मत लेना. फिजिक्स
मार्क्स अच्छे देगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सेम स्टोरी एज मैथ्स, मैथ्स वाली ही कहानी है, तो मोस्टली इंजीनियर्स या फिजिक्स ग्रेजुएट्स ही लेते हैं। ये सेम कहानी है यहाँ पे, यू नीड टू लव फिजिक्स, इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स इफ यू डू वेल। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, इसके साथ मैंने पॉडकास्ट भी करी थी, अभिषेक शर्मा, रैंक 38, फिजिक्स ऑप्शनल है, अच्छे मार्क्स आए हैं, बट बहुत मेहनत करी है उसने फिजिक्स में। तो अगर आप उस लेवल की मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मार्क्स आपको जरूर दे देगा। मैथ्स और फिजिक्स की कहानी सेम है। कुछ रह गया? आई डोंट थिंक कोई ऑप्शनल रह गया। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। सोशियोलॉजी की मैं बात कर चुका हूँ, PSIR की मैं बात कर चुका हूँ, एंथ्रो की कर चुका हूँ, हिस्ट्री की कर चुका हूँ, मैथ्स की कर चुका हूँ, ज्योग्राफी की कर चुका हूँ, पबैड की कर चुका हूँ, हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिकल साइंस एंड फिलोसफी, इन सब की बात मैं कर चुका हूँ। इसके बाद इस लिस्ट में भी जितने ऑप्शनल्स थे इनकी बात मैं कर चुका हूँ। अब बात करते हैं व्हेन टू डिसाइड इन द नेक्स्ट 10 डेज। नहीं करते, देखो कितना भी टाइम आप लगा लो इस डिसीजन में, आप चाहो तो 10 महीने भी सोच सकते हो। मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूं कि अगले 10 दिन में डिसाइड कर लेना, क्योंकि इससे ज्यादा ऑथेंटिक डेटा आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। इतना डेटा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास नहीं है भी तो उन्होंने कंपाइल नहीं किया हुआ, ठीक है, हमने किया हुआ है। आपको इससे बेटर डेटा नहीं मिल सकता। 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में डिसाइड करो एंड स्टार्ट, ठीक है। अब यहां पर आप कौन कौन से ऑप्शंस पढ़ सकते हो, ये सारे ऑप्शनल हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इन ऑप्शंस के लिए तो आपको सोचना नहीं है, एक बार मैं लिस्ट दिखा देता हूं आपको। इन ऑप्शंस के लिए आपने कुछ सोचना नहीं है। या तो जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में वी विल हैव वन और दी अदर बैच स्टार्टिंग, आप वो बैच ले लेना अगर आपको इनमें से कुछ सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर कुछ लेना है तो मैं आपको, आप once you decide, I will give you a recommendation. I can't say it publicly, but I'll give you a recommendation. I'll ask the team to reach out to you. अगर इनके अलावा कोई और डिसीजन लेना है तो I'll tell you where to go. जैसे किसी ने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लेना है तो एक बहुत अच्छे सर हैं जिनके पास आप जा सकते हो। अगर साइकोलॉजी लेना है तो एक बहुत अच्छे सर हैं जिनके पास आप जा सकते हो। इसके बाहर अगर आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं दे दूंगा। अगर इनमें से कोई लेना है तो सोचो भी मत एंड जस्ट कम हियर एंड डू इट। मैं क्यों कह रहा हूं, दो फायदे हैं इसके। एक तो आप इस बार हमारा रिजल्ट देख लेना, वी हैव टॉप फैकल्टी हियर। सेकेंडली, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपकी अगर फाउंडेशन की क्लास 4:30 से 7:30 हो रही है रोज, इफ यू आर स्टडिंग योर ऑप्शनल हियर, व्हाट द गुड थिंग इज गोइंग टू बी कि आपकी क्लास सिंक में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक टाइम पे 2 क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। ऑप्शनल की क्लास सुबह होती है और जीएस की क्लास शाम को होती है, तो आपका बर्डन मैनेज हो जाएगा। कभी सेम टाइम पे 2 क्लास में आप फंसोगे नहीं। ये तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपकी जीएस की क्लास भी शाम को है और ऑप्शनल की भी शाम को है, फिर एक ना एक मिस होगी, रिकॉर्डिंग आप देखोगे नहीं, फिर वही दिक्कत आएगी। तो इफ यू आर सिलेक्टिंग एनी ऑफ दीज, यू कैन विद अ ब्लाइंड ट्रस्ट यू कैन गो फॉर वन ऑफ दीज हियर। कोई और चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा ये डिसीजन आपने लेना है। ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैं आपके लिए अपलोड कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ पता रहे। इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, ये टेबल जरूर बना लेना, ये टेबल जरूर बना लेना। ये टेबल बनाने के बाद इस वीडियो को भी मैं अपलोड कर रहा हूं, इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, एंड वाले पार्ट को, और ये टेबल बनाने के बाद डिसीजन ले लेना। डिसीजन इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज टेक इट इन द नेक्स्ट 10 डेज। मैं चाह रहा हूं कि मई जून तक आप लोग अपना ऑप्शनल एटलीस्ट एक बार खत्म कर लो। जून में आप सब लोग मेरे साथ MMP प्लस में राइट स्मार्ट GS3 पढ़ने वाले हो। अगर ऑप्शनल पढ़ रखा होगा तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि फिर आंसर राइटिंग के लिए जेन्युइन टाइम होगा, ठीक है। तब मैं आपको राइट स्मार्ट पढ़ाऊंगा जून में, मैं आपको GS3 भी पढ़ाऊंगा, है ना। तब तक अगर ऑप्शनल हो रखा होगा तो काफी सही रहेगा, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू इफ यू ऑलरेडी डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। अगर ऑलमोस्ट ये सब कुछ कर चुके हैं तो काफी मजा आएगा, काफी सही रहेगा, इट विल बी फन फॉर यू, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके ये डिसीजन 10 डेज में ले लो, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी स्टार्ट स्टडिंग योर ऑप्शनल। अब आपको 2-3 महीने हो गए हैं प्रिपेयर करते हुए, तो यू आर ब्रॉडली नाउ कंफर्टेबल विद हाउ थिंग्स आर रनिंग। आपको जीएस से थोड़ा कंफर्ट लेवल आ गया होगा, एक ब्रॉड प्रोसेस आपका सेट हो गया होगा। अब टाइम है, लेट अस बी अहेड ऑफ द कंपटीशन। आप लोगों ने जल्दी स्टार्ट किया है। जनरली 2027 के लिए लोग अप्रैल या मार्च में स्टार्ट करते हैं,
आप लोग एक स्टेप अहेड हो तो उस लीड को मेंटेन करते हैं, उसको जाने नहीं देते। जब तक मार्च अप्रैल वाले समझें यूपीएससी होता क्या है, तब तक आप लोग ऑप्शनल भी करके बैठे हो, आप उनसे बहुत आगे हो गए। एंड सिंस यू हैव मेड दिस अर्ली स्टार्ट, आई वांट यू टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस अर्ली स्टार्ट। सो बाय द एंड ऑफ जनवरी प्लीज डिसाइड। ठीक है, स्कोरिंग का डेटा दे दिया, यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो बता दिया। बाहर कुछ चाहिए हो तो मेरे से पूछ लेना, आई इन सम वे आई विल रीच यू। ठीक है, आप मेल ड्रॉप कर सकते हो ask@sarthi पे, आई विल रीड द मेल्स एंड सेंड देम बैक, अगर इसके बाहर कुछ लेना है तो। अदरवाइज इन ऑप्शनल्स में तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है दैट यू शुड जस्ट बी हियर एंड विल इंश्योर कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले, जैसे सारथी में आपको अदरवाइज भी मिलता हुआ है। आपने अभी तक देख ही लिया होगा हमारी फिलॉसफी क्या है कंटेंट को लेकर। ठीक है, स्कोरिंग ऑप्शनल्स का डेटा आपके पास है, ये टेबल बनाओ एंड विद इन 10 days लेट अस टेक द डिसीजन। 10 दिन में डिसीजन लेते हैं। फिर ask@sarthi पे ईमेल डाल दीजिए, ask@sarthi। अगर कोई और ऑप्शनल चाहिए या वैसे भी कोई वो है, ask@sarthi.com, इस पे ईमेल डाल दीजिए, ask@sarthi। अगले 10 दिन में डिसीजन लेते हैं, अगले 10 दिन में डिसीजन लेते हैं। इन द नेक्स्ट 10 days लेट अस डिसाइड। ठीक है, इन द नेक्स्ट 10 days लेट अस डिसाइड एंड स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है यार, थैंक यू गाइस।